بلوچستان سے پنجاب جانے والے 9 مسافروں کو بس سے اتار کر یوب میں قتل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں نے مسافروں کو شناخت کے بعد اغوا کیا، پھر گولیاں مار دیں۔ جام بھاگ افراد کی میتیں پنجاب لانے کے لیے 5 ایمبولینس بلوچستان روانہ۔ کمشنر ڈی جی خان کا کہنا ہے کہ میتیں آبائی علاقوں کو پہنچائی جائیں گی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ بے گناہ شہریوں کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی درندگی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد تاریکی میں فرار ہوئے، تعاقب جاری ہے۔ فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد حملے پسپا کرنے کا بھی دعویٰ ہے۔ جی دیکھیں، آج فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے مستونگ، کلات اور سراڈگئی کے علاقے میں 3 مختلف حملے کیے گئے تھے۔ مستونگ اور کلات میں سیکیورٹی فورسز نے ان کو رسپونڈ کیا اور رسپونڈ کرنے کے نتیجے میں وہ وہاں سے پسپا ہوئے، لیکن سراڈگئی کے علاقے میں ایک جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر دہشت گردوں نے ایک مسافر بس سے عام معصوم مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر اتارا اور اتارنے کے بعد قتل کر دیا۔ ان میں 9 ایسے مسافر شامل تھے جو کہ کوئٹہ سے پنجاب کے لیے ٹریول کر رہے تھے، اور لازمی سی بات ہے کہ کوئی ایسی سیکیورٹی انسٹالیشن نہیں تھی، معصوم مسافر تھے جنہیں شناخت کی بنیاد پر اتارا گیا اور قتل کیا گیا، جو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ حکومت بلوچستان اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا، ہمارا جواب سخت ہوگا۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ سر ڈھاکہ میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ریاستی جنگ ہے، اس میں 2 ٹوک فیصلہ ہوگا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں بس سے مسافروں کے اغوا اور قتل کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹے گے، بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ نہتے شہریوں کا قتل فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی ہے۔ عزم، اتحاد اور طاقت سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بھارت کی طرف سے 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ زہرا کی رپورٹ دیکھیے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 271ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کی طرف سے 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کا مقصد بھارت کا خطے میں نیز سیکورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گرد عناصر کے خلاف سیکورٹی فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ شرکاء نے تشویش ظاہر کی کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جارحیت کو شکست دینے کے بعد اب بھارت پراکسیز کے ذریعے مضموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فورم نے واضح کیا کہ پاکستان کی عوام کی حفاظت اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے، اور بھارتی اسپانسرڈ پراکسیوں کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کاروائیاں ناگزیر ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف نے وزیراعظم کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب سفارتی دوروں کے حوالے سے پاکستان کے متحرک کردار سے آگاہ کیا۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی امریکہ کے دورے پر بھی بریفنگ دی گئی، جہاں اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا بامقصد 2 ٹوک موقف پیش کیا گیا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی داخلی خارجی سلامتی کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ شرکاء نے تشویش ظاہر کی کہ عالمی سطح پر طاقت کے استعمال کو ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر اپنانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے نہ صرف خود انحصاری بلکہ قومی اتحاد و عزم کو مزید اہم بنا دیتا ہے۔ کانفرنس میں جنگ کی بدلتی نوعیت اور ابھرتے خطرات کے تناظر میں پاک فوج کی حکمت عملی اور جدید اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہمانگی میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی مکمل آپریشنل تیاریوں پر بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔
بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت نے اب کہا ہے کہ اگر بچے ان سے ملنے کے لیے وہاں جائیں گے تو انہیں بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا ایک فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان کو اجازت کے حوالے سے کہا کہ ان کا پاکستان آنے کا مقصد اپنے والد سے ملنا ہے، وہ جلوس کی صورت میں اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بار بار کہتے رہے کہ انہیں اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے نہیں دی جا رہی، جو ان کا حق ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے گرفتار ہوں گے تو سیاسی طور پر ابھریں گے۔ دونوں بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی تھی تو بار بار وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ ان کو ایک ہفتے میں ایک بار الاؤڈ ہے کہ وہ کال کریں، لیکن ان کو وہ اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جلوس کی صورت میں اڈیالہ جانے کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی ملاقات پھر نہیں ہو سکے گی، اور جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہو سکتا ہے قانون کی بھی خلاف ورزی ہو، تو ایسی کوئی ہم بات نہیں کریں گے، نہ حرکت کریں گے۔ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں بالکل انہیں یہ حق ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اپنے والد کو ملنے کے لیے، اور انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر اپنے والد کی سیاسی تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ پارٹی میں ان کی سیاست کو جو وہ اون کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے آ کے پولیٹیکل موومنٹ میں حصہ لینا ہے یا ان کی سیاست کو اون کرنا ہے تو پھر تو ان کے لیے گرفتاری بڑی ضروری ہے۔ گرفتار ہوں گے تو پھر وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ امرج ہوں گے نا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بچے پہلے پاکستان نہیں آئے، اب انہیں آنے کا خیال کیوں آیا؟ حکومت کی جانب سے سیاست کی اجازت ہے، انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ طلال چودھری نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی انتشار پھیلانے آئے گا تو 26 نومبر سے زیادہ سختی سے پیش آئیں گے۔ قانون سے ہٹ کر اگر کوئی چڑھائی، بغاوت، فتح کرنے اسلام آباد نیت سے آئے گا تو اس کے ساتھ 26 نومبر سے بھی زیادہ سختی سے پیش آئیں گے۔ رہی بات بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی، پاکستان میں جو بھی آدمی قانون کے اندر رہ کر کرے گا، حکومت پاکستان اسے سپورٹ کرتی ہے۔ اگر انہیں والد کا خیال ہوتا تو وہ بہت دیر پہلے ادھر ضرور آتے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو بانی پی ٹی آئی سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی شہریت کیوں نہیں دلوائی؟ وزیر اعظم بننا، اس میں سیاست کرنا وہ بہت آپ کو اچھا لگتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو پاکستان میں رہنا اور پاکستان کے شہری بنانا بھی پسند نہیں کرتے۔ سیاست کی اجازت ہے، انتشار کی نہیں۔ احتجاج کی آڑ میں کسی بھی بغاوت کی اور کسی بھی اس طرح کے کام کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے یہاں کاروبار حکومت ہو یا عام آدمی کی زندگی افیکٹ۔ اب بات کریں موسم کی اور آپ کو بتائیں کہ آج سے 17 جولائی تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ مری گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 13 سے 17 جولائی کے دوران آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر بارشیں ہوئیں۔ سب سے زیادہ بارش لاہور میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ جہلم دریا میں مونسون کی حالیہ بارشوں کے باعث پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1190 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1242 فٹ ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا سے ملحقہ علاقوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ سہیل امتیاز۔
जी बिल्कुल ऐसा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम किनारे, जहाँ पर मानसून की हालिया बारिशों की वजह से दरिया में पानी का बहाव जो बढ़ रहा है। अगर बात की जाए मंगला डैम की, तो मंगला डैम में इस वक्त पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश जो है वो 1242 फुट है, जबकि इस वक्त मौजूदा पानी का लेवल जो है वो 1190 तक पहुँच चुका है, जिसके पेश नज़र झेलम ज़िली इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और दरिया से मुल्का आबादियों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ 1122 सिविल डिफेंस और दूसरी तंजीमों के कैंप भी जो है गाई कैंप लगा दिए गए हैं, ताकि हर किस्म की सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के अहल खाना उनकी लाश लेकर कराची से लाहौर रवाना हो गए हैं। उनके भाई का कहना है कि एक करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से आने में ताख़ीर हुई। हम पुलिस से राब्ते में थे। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा राब्ता करने वालों से तफ्तीश की जाएगी। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के अहल खाना बिल आखिर 3 रोज बाद कराची पहुंच गए। हुमैरा के भाई नवीद असगर का कहना है कि उनका तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से राब्ता हुआ था। हमारी फुप्पी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वालिद जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान थे। पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफ़ी, और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाक़या हुआ, और जिसका कह लेंगे सेंस एक बिल्कुल वर्क अचानक से जो है वो जो मामला हो गए ऐसे। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको अगर कोई ऐसी एमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। तो वालदा बेचारी वालदा तो फिर वालदा ही होती हैं, उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकते थे उन्होंने। एसएसपी साउथ महजूर अली कहते हैं कि इमारत में हर फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं और हुमैरा के पड़ोसी फरवरी में वापस आए थे। सीडीआर में आने वाले कैब ड्राइवर और दीगर अफराद से भी तफ्तीश की जाएगी। उन पर जो है वो पैटर्न्स और पासवर्ड लगे हुए हैं, वो हमने जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए भेजी हैं चीज़ें। अगर वो पासवर्ड ब्रेक हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ें सारी जब ऑन हो जाएंगी तो उसके बाद उससे जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट होगा वो इन्फॉर्मेशन फिर शेयर की जा सकती है। अहले खाना का कहना है कि हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में की जाएगी, जबकि इससे कबल पुलिस ने कानूनी तकाज़ों के पेश नज़र हुमैरा के भाई का DNA टेस्ट भी कर लिया। कैमरामैन अदनान अली के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके खोखरा पार में 16 साला लड़की की घर के बाहर से फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस को शुबा है कि अरीबा को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। शक की बुनियाद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये है वो गली जहां अरीबा अपने घर से निकली तो सफाक दरिंदे इसकी घात में थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अरीबा को गला घोंट कर कत्ल किया गया। लाश जो ये गली में फेंका हुआ था, ठीक है, तो अभी जो ये इंक्वायरी चल रही है, और तो बच्ची की चप्पल भी इस घर में मिली है। मकतूला के वालिद ने बताया कि अरीबा 2 बहन भाइयों में बड़ी थी। घर से खाना लेके आई थी, मैं उस दिन घर पे नहीं था। उसके बाद बच्ची पता नहीं, मैं ये समझा बच्ची खाना घर रख के घर पे चली गई है। बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, बोलने बेटा ये बाहर देखो क्या कौन पड़ा हुआ है। मैंने बच्ची को सीधा करा तो मेरी बेटी वहाँ पड़ी हुई, मेरे से रहा नहीं किया मेरे भाई। पुलिस ने जाए वक़ूए से शवाहिद जमा करके करीब ही ज़ेरे इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। शुबा है कि अरीबों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि एशिया कप हॉकी भारत में होना है। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कही। राना मशहूद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नाकामी की तरह हॉकी टीम भी चाहती है कि भारत को भारत में हराए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो इसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने काउंसिल का सालाना इजलास आम 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया है और इजलास का नोटिस तमाम रुकन ममालिक को भेज दिया है। तवील अरसे बाद ACC की मीटिंग बांग्लादेश में हो रही है। ज़राए का कहना है कि अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए के मुताबिक भारत और श्रीलंका ने ACC इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर इजलास का वेन्यू तब्दील न हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। ज़राए
राय का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप 2025 का मेजबान भारत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट के 3 वेन्यूज को मुतबादिल प्लान के तौर पर रखा गया है। क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से हिदायत का इंतजार है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से एशिया कप पर खदशात के बादल छाए हुए हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक सितंबर में एशिया कप का मेजबान UAE हो सकता है। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को दिल की तकलीफ। शिबली फराज पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा, बताइएगा सर्जरी से मुतालिक डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को दिल की तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर कर रहे हैं। शिबली फराज इस वक्त पेशावर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज है। अस्पताल जराये के मुताबिक शिबली फराज के दिल की मेन शरियानों में से एक शरियान पर मसल ब्रिज है। शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का उसको खतरे भी है। मसल ब्रिज का मसला हजारों मरीजों में से एक का होता है। माहिरीन सेहत का ये भी कहना था कि शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है और ब्लड प्रेशर भी उनका हाई हो जाता है, जिससे शिबली फराज कई साल से दिल के मरीज भी हैं और इस्लामाबाद में कई बार वो अपनी एंजियोग्राफी भी करा चुके हैं। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 10 माहिर डॉक्टर्स जो है पर मुश्तमिल टीम उनका इलाज कर रही है। इसी तरह हमारी बात उनसे सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज से हुई तो उनका ये कहना था कि दिल की बीमारी काफी अरसे से है और लेकिन वो एहतियात नहीं कर रहे थे और दवाइयात भी सही तरीके से नहीं ले रहे थे, जिनकी वजह से उनको थोड़ी सी मामूली टेंशन भी थी और उस वक्त वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शीबा हैदर, आप हमें अपडेट कर रही थी। शिमाली अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम अपना का सालाना कन्वेंशन रियासत टेक्सास में जारी है। अपना की सदर का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि अमेरिका में काम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और पाकिस्तान में फलाही मंसूबे भी जारी रखे जाएं। यहाँ की जो एक्सपर्टीज़ हम इम्पार्ट करना चाहते हैं वो पाकिस्तानी मेडिकल स्कूल्स को हम चाहते हैं, हम जहाँ से ओरिजिनेट होके आए हैं उधर वो मेडिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ पहुँचाएँ जो हमने यहाँ पे की है। जो स्पेशलाइज्ड केयर से लेके प्राइमरी केयर, यू नेम इट, हमारे अपना के फिजिशियंस एकेडमिक मेडिसिन में भी हैं और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी हैं। तो हम सब फिजिशियंस की जो मतलब ब्रेन पावर कंबाइंड है वो हम पाकिस्तानी फिजिशियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों, रेजिडेंट्स हों, फेलोज हों या अटेंडिंग्स हों। तो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं उसमें हमारे जो हर साल हम यूजुअली 4 से 5 मेन NGOs के साथ आइडेंटिफाई करके उनके साथ MOU साइन करते हैं। इस मुल्क में भी ज़रूरत है फिजिशियंस की, स्पेशली रूरल काउंटीज़ में। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने J1 वीज़ाज़ का जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया। तो हमारे जितने रेजिडेंट्स आने थे, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि सारों को 99% को मिल गया है वीज़ा एंड दे हैव बीन एबल टू जॉइन देयर रेजिडेंसीज फ्रॉम जुलाई 1। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमाराती हम मनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात की है, जिसमें इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताबन पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों वज़रा ने जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू की। इस मौके पर मोहसिन नकवी को इमाराती वजारत दाखिला के जदीद सिस्टम्स, पुलिस की मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इकदाम से भी आगाह किया गया। मुलाकात में आला इमाराती हुकाम और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के हमरा पाकिस्तान हुकाम भी शरीक हुए। फैसलाबाद में पार्किंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। 8 बाज़ारों को व्हील फ्री करने से भी मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं। बाज़ारों से मुल्हिका सड़कों पर नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स बन गए हैं। शहरियों से गैर कानूनी तौर पर मुंह मांगी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की सड़कों से नाजायज़ तौर पर पैसा बनाया जा रहा है, ये कहना है उन शहरियों का जो बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आते हैं तो इन्हें अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए सरकारी सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड वालों को मुंह मांगी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये सड़कें बेच दे रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं हमसे गाड़ी खड़ी करने का। इधर पे हम बाजार आए हुए हैं, आधा घंटा खड़ी करो, घंटा खड़ी करो, 2 घंटे खड़ी करो, 200 रुपये लेना इन लोगों ने। अभी आप देख सकते हैं ये पीछे रश लगा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है,
सड़कों पे जहाँ जगह मिलती है उन्होंने अपना एक छोटा सा पार्किंग एरिया बना लिया है, वहाँ पे वो अपने टोकन वगैरह लगाकर सब कुछ बनाए जाने। जिली इंतजामिया गैर कानूनी पार्किंग माफिया के सामने बेबस नजर आती है, जबकि पार्किंग के मसाइल का फौरी हल भी दस्तयाब नहीं है। इश्यूज इसके पार्किंग के हवाले से आ रहे हैं, लेकिन हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास ये है कि रेलवे की लैंड हमारे पास पड़ी हुई है, हम उसको पहले भी यूटिलाइज कर रहे हैं पार्किंग के, उसके पीछे मजीद भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पार्किंग के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होते जा रहे हैं, जबकि इन मसाइल से निकलने की मनसूबाबंदी सिर्फ जुबानी दावों तक महदूद है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। सूबे के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद, जाफराबाद, कच्ची सोहबतपुर में एक मरतबा फिर सैलाब का खतरा मुमकिन। सैलाब की पेशगोई के बावजूद कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन और महकमा इरीगेशन की जानिब से कोई खास इकदाम नहीं किए गए। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, लेडी में जो है गुज़िश्ता शब से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिशों के बायस इन इलाकों में गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है वो कम हुई है, जबकि मुमकिना सैलाब के पेशे नज़र जो है कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न और महकमा इरीगेशन की जानिब से ताहल कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पटफिटर केनाल के भाव में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो है बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और झलमक्सी और कच्ची जो है कच्ची में एक मरतबा फिर सैलाब आने का ख़तरा मुतवक्का है। जबकि एसी इरीगेशन गुलाम सरवर के मुताबिक मुमकिना सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, बहावल नगर में पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों में ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। बिल्कुल, बहावल नगर में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत किसानों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए जा रहे हैं। जिला भर के 86 किसानों में जो है वो मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए हैं। इससे पहले भी जो है वो सब्सिडाइज ट्रैक्टर जो है वो किसानों में तकसीम किए गए थे, जिनकी तादाद 500 से जायद थी, लेकिन इस दफा जो है वो किसानों को दिए जाने वाले ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री हैं। और ये ग्रीन ट्रैक्टर जो हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, ये इस वजह से है कि यहाँ पर जो है वो गंदम उगाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा गंदम की जो है वो पैदावार को जो है बेहतर किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर इशफाक मौजूद हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक अनाउंसमेंट की थी, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं थी, उसको आज हम पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। जो फार्मर 12.5 एकड़ से ज्यादा गंदम काश्त करेगा उसके लिए 1000 ट्रैक्टर बजरिया कुरानंदाजी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में 86 ट्रैक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का एक बहुत अहसन इकदाम है। जी, ट्रैक्टर तकसीम के लिए एक तकरीब का भी इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून के साथ पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की और किसानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस तकरीब में मौजूद थी। किसानों का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो इनिशिएटिव किसानों के लिए लिए जा रहे हैं वो इंतहाई अहसन है और इनसे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, सिंध कुदरती वसाइल से माला माल और फितरी हुस्न का गहवारा होने के बावजूद आज बढ़ती हुई आबादी के बोझ तले दब रहा है। सिंध की बढ़ती हुई आबादी और मौजूदा वसाइल पर नजर डालें तो सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। अनी नईम की रिपोर्ट देखिए। साल 2023 में होने वाली मरदमशुमारी के सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सिंध की आबादी 5.5 करोड़ नफूस से जायद है, जो साल 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4,78,54,510 थी। यही नहीं, हर साल आबादी में सालाना तकरीबन 2.4% की शरह से इजाफा हो रहा है, जो महदूद वसाइल में बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, मीरपुखार जैसे बड़े शहरों की आबादी में भी इजाफा सहूलियात के बरक्स है, जबकि हुकूमती इक़दामात नजर नहीं आते। आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से आबादी और महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, इंसान भूख मर रहा है, रोज़गार है ही नहीं बिल्कुल भी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से वसाइल जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रीवेशन हो रही है लोगों के अंदर। तो हमारे वसाइल बढ़ाए जाएँ। बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल सोचते हुए माँ बाप को सोचना चाहिए कि कम बच्चे हों और ताकि उनका अच्छा मुस्तकबिल बने। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की ऑफिसर नादिया लाड़िक का कहना है कि बढ़ती आबादी की बड़ी वजह नाख्वानदगी है।
हुकूमत को बाद मुमालिक की तरह कानून साजी करने की जरूरत है। पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, लेकिन अब ये हर घर का मसला है। बढ़ते हुई आबादी जो है वो हमारे लिए गंभीर मसला बन गया है। सेहत, तालीम, निकासियाब, पानी, माहौल की आलूदगी, हर जो मसाइल है वो बढ़ती हुई आबादी से ही निकलता है। बढ़ती हुई आबादी एक खामोश बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसके तदारुक के लिए न सिर्फ हुकूमती सतह पर हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है, बल्कि माशरती सतह पर हर फर्द को आबादी को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मिट्टी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी की बिजली मुनक़ता होने के बायस मुताले के लिए आने वाले तलबा जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं, वहां गर्मी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी बजीर। इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतजाम चलाई जाती है और इस लाइब्रेरी की बिजली जो है वो गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुनक़ता होने के बायस इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले कंप्यूटर्स, इंटरनेट की सर्विस वो जहाँ मुअत्तल हो गई है, वहाँ हब्स और शदीद गर्मी के दौरान भी जो यहाँ पर आने वाले तालिब इल्म उनकी तादाद में खासी कमी दिखाई दे रही है और जो तालिब इल्म इस वक्त मौजूद हैं वो भी शदीद गर्मी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। पे जो 3 हफ्तों से इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ रहा है, हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं, रेगुलर बेस पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो हाई एजुकेशन से रिलेटेड हैं, को थीसिस रिसर्च है, कंप्यूटर के मतलब थीसिस रिसर्च एंड नेट लगा हुआ है, तो उसमें लाइट की वजह से ये भी नहीं कर पाते हैं। इसी हवाले से हमारी महकमा सोशल वेलफेयर हुकाम से बात हुई है। उनका कहना है कि इसके जो बिजली के 2 मीटर्स हैं वो जल गए हैं, जिनकी तब्दीली के लिए मुतल्लिका हुकाम को लिखा गया है और उनका कहना था कि अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर इस लाइब्रेरी की जो बिजली है वो बहाल करवाई जाएगी। जी। नौशहरा में एंटी नारकोटिक्स फोर्स नॉर्थ और खैबर पख्तूनख्वा ने करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ इकसाम की मुनशियात को तल्फ कर दिया। रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स नॉर्थ व खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नौशहरा में ड्रग बर्निंग की मुनक्किदा तकरीब में ANF हकाम के साथ साथ नौशहरा की ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर 1 साल में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई करोड़ों रुपए मालियत की 1200 टन के करीब मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात और 900 लीटर शराब तलब कर दी गई। मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं, जिसमें हशीश है जो कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है, इसके बाद हेरोइन है, इसके बाद आइस जो कि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा आम है, मैथ जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा कोकेन की भी इसमें काफ़ी मिकदार है और इसके अलावा लिकर जो शराब है उसकी भी काफ़ी मिकदार है। मेहमान खुसूसी DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद का कहना था कि मंशियात का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स का बिजनेस है ये वर्ल्ड में 2nd सबसे बड़ा बिजनेस है एविएशन इंडस्ट्री के बाद। जब बिजनेस है उनके लिए, तो उनके लिए मेरी, आप, हमारी यूथ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे, आम फैमिली, उनकी जानों की उनको कोई कदर नहीं है, उनको सिर्फ इससे बिजनेस का इंटरेस्ट है। तकरीब के दौरान एंटी नारकोटिक फोर्स ने इस अज़म का इजहार किया कि मंशियात की लानत के खिलाफ जंग हर सतह पर जारी रहेगी। मोहम्मद शाहिद, जियो न्यूज़, नौशहरा। नाजरीन की एंटरटेनमेंट के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक किया गया नया ड्रामा सीरियल मोहरा आज से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाएगा। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल को तहरीर किया है ताहिर नजीर ने और दिलकशी के साथ कहानी को अक्सबंद किया है मोहसिन मिर्जा की हिदायत में। ड्रामा सीरियल के मरकजी किरदार हमजा, अलीजे और सिकंदर के बीच रंजिशों की एक ऐसी बिसात है जिसमें हर किरदार एक मोहरे की सूरत अपनी चाल का मुंतजर नजर आएगा। ऊंट बैठ भी जाए तो कुत्ते से ऊंचा ही लगता है और इस कहावत में तुम ऊंट नहीं हो। शायरी में जहीर ज़र्फ के हमरा और कंपोजिशन में एलेक्स शहबाज के संग मुआवनत करते हुए यशाल शाहिद ने अपनी मशहूर कुन आवाज के साथ ड्रामा सीरियल के OST को तरतीब दिया है। मोहब्बत का फरेब देकर नफरत की सौदागरी में जिंदगी खसारे की नजर हो जाएगी या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस दिलचस्प कहानी को नशेबो फराज से गुजार कर अलीजे को कैसे दिलाएंगे इंसाफ। जानिए नई ड्रामा सीरियल मोहरा में 11 जुलाई से हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।